Hello friends, let us continue our Ethics GS paper 4 classes, and today we are going to understand the foundational values. What are the foundational values for civil services? And secondly, we will try to understand the concept of integrity. So a lot of times आप लोग जो है वो सुनते होंगे integrity term, क्या है integrity, right, for civil services. So today we will discuss this. And it is part of chapter number 3 चल रहा है हमारा, ठीक है. So first we covered the chapter number 1, then we covered chapter number 2, then we covered chapter number 4, and presently we are in chapter number 3, and the name of the chapter is aptitude and foundational values for civil services, right? So aptitude is not separate. Aptitude is for civil services and foundational values for civil services. So in the previous session हमने क्या डिस्कस किया था, that first of all what is aptitude, then what is the relationship between aptitude and intelligence, then what is the relationship between aptitude and interest, then we try to understand, हमने समझने की कोशिश करी what are different measures, what are the different methods of measurement of aptitude. So measure कैसे कर रहे हैं aptitude को हम. Then finally aptitude for civil services. So in the previous session we have discussed all this. So what is aptitude? So हमने समझा that it is a set of abilities to perform a specific task, and these set of abilities are both innate as well as acquired, because a lot of hard work, a lot of practice is required to develop aptitude in a particular field, right? So अगर हम एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस का रिलेशनशिप देखें तो बेटर रिप्रेजेंटेशन क्या है? दिस इज द बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस. अगर हम हार्वर्ड गार्डनर का मॉडल अगर फॉलो करते हैं फॉर इंटेलिजेंस, सो देयर आर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, बेसिकली 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस, एंड वी कैन डेवलप एप्टीट्यूड इन एनी ऑफ दोज 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस. सो एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस में कुछ इस तरह का हमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है. अगर हम केवल लॉजिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो हमें कुछ इस तरह का रिलेशनशिप एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में देखने को मिलेगा. इफ दिस साइड इज एप्टीट्यूड एंड दिस साइड इज इंटेलिजेंस. एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट की बात करी हमने पिछले सेशन में, तो कुछ इस तरह का रिलेशनशिप जो है वो एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में देखने को मिलेगा, राइट? जिसमें बेस्ट कंडीशन क्या होती है? व्हेन यू हैव द एप्टीट्यूड एंड आल्सो इंटरेस्ट, राइट? व्हेन यू हैव द एप्टीट्यूड फॉर अ स्पेसिफिक फील्ड, you have special set of abilities to perform well in a specific field, and you have interest in that specific field. That is the best combination for success. Then what are the different methods of measurement of aptitude? So we have generalized test and specific test. So we have generalized tests such as SATs and differential aptitude tests. Then we have specialized tests such as for UPSC, CSE it is CSAT. For getting admissions in MBA it is MAT or CAT, right? For engineering students it is GATE. For sports it is sports aptitude test, and there are many other different type of aptitude tests out there, right? And finally the aptitude for civil services. So we have listed few aptitudes that are required for civil services, like a civil servant should have good command over language, linguistic intelligence होना बहुत जरूरी है. Interpretation of what someone else has said, and interpretation, correct interpretation जो है वो हमने जो कहा, जो लिखा, नाप तोल कर शब्दों का इस्तेमाल करना ताकि जो इंटेंडेड है वही मैसेज जो है वो सामने वालों तक पहुंचे. तो ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, उसके अलावा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि क्राउड को इंडिविजुअल से लेकर बड़ी मॉब्स तक, लोवेस्ट लेवल ऑफ मतलब लोवेस्ट लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक सभी के साथ आप कम्युनिकेट कर सकें इफेक्टिवली, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर, हमने देखा था कि क्या क्या सेट ऑफ एबिलिटीज जो है वो सिविल सर्वेंट्स में होनी चाहिए. सो ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, अभी हम जो चैप्टर 3 है उसका जो टाइटल है वहीं पर ही है, राइट? द सेकंड पार्ट ऑफ दिस टाइटल इज फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज. दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन टुडेज सेशन. Foundational values for civil services. Right? So
to understand this, to understand the foundational values or simply to understand this topic, सबसे पहले तो हमें मीनिंग समझना पड़ेगा इन टर्म्स का. What do we mean by foundational, right? What do we mean by values, and specifically for civil services? That means there are different type. सबसे पहले हम समझेंगे वैल्यूज क्या है, जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया है इन द चैप्टर 1, राइट. फिर हम देखेंगे फाउंडेशनल वैल्यूज क्या है. फिर हम देखेंगे कि अदर सर्विसेज में क्या इस तरह की फाउंडेशनल वैल्यूज होती हैं या अदर प्रोफेशंस में होती हैं. देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर सिविल सर्विसेज. ऑलराइट. सो civil services, तो I hope you guys understand that what are civil services. So in government इंडिया में अगर हम बात करें स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर, जो हायर लेवल की गवर्नमेंट पोस्ट हैं, द ग्रुप ए एंड ग्रुप बी जो पोस्ट हैं, जनरली वी कॉल देम द सिविल सर्विसेज, राइट. बट व्हाट आर वैल्यूज? वैल्यूज क्या होती हैं? सो चैप्टर 1 में क्या समझा था हमने? दैट वैल्यूज आर नथिंग बट द मॉरल आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी. moral ideals of the society are the values. So I don't think that I need to go into details in explaining what values are, because हमने बहुत डिटेल में इसको ऑलरेडी चैप्टर 1 में कवर किया है. सो मेक श्योर, अगर आप मिस कर रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को, मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दोज सेशंस. उन्हें रिवाइज आप अच्छे से कर लें ताकि एक बार आपको रिफ्रेश हो जाए दिमाग में दैट व्हाट आर वैल्यूज, राइट. एंड फॉर वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट्स या सिविल सर्विसेज के लिए हमें क्या समझना है, दैट कि what are the values that a civil servant को फॉलो करनी चाहिए, राइट. what are the values that a civil servant must follow? That is what we need to understand. And out of those we need to understand what are the foundational values. That a civil servant must follow. एक good civil servant में वो foundational values, वो value system एक good civil servant में होना ही चाहिए. तो as far as types of values are concerned, जो कि हम already cover कर चुके हैं, types of values. So दो तरह की values हमने देखी थी, right? वैसे तो हमने different type of classification देखे थे, right? But हमने classification देखा था terminal values and instrumental values. That there are some values, those who act as instruments to achieve the terminal goals, the terminal values. Like for example, discipline. So I guess आप लोगों को मेरे पीछे नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैंने यहाँ लिखा है types of values. ठीक है. Instrumental value. Discipline is an instrumental value. Now we need this value of discipline in order to succeed, right? And why do we need to succeed? In order to be happy. Let's say we need to succeed in order to be happy in our life. So that is the being in a condition of bliss is the terminal goal. That's the terminal value, right? So terminal values are for the ultimate purpose of the life, to being in a state of bliss, to being in a state of peace, to being in a state of happiness. And instrumental values are those जिनको हम यूज करके अपने terminal goals तक पहुंचते हैं. So this much we have already covered in the previous sessions, right? So what are foundational values then? Foundation, right? Foundational यानी कि जो बहुत ही ज्यादा बेसिक वैल्यूज हैं. विदाउट फाउंडेशन क्या एक बिल्डिंग खड़ी हो सकती है? फाउंडेशन जिन्हें हम नींव कहते हैं. विदाउट नींव एक बिल्डिंग को खड़ा करना बहुत मुश्किल है. सो फाउंडेशनल वैल्यूज आर दी, क्या कह सकते हैं आप,
ये ऐसी वैल्यूज हैं जो कि इनके होने के, अगर ये वैल्यूज अगर मौजूद ना हो किसी व्यक्ति में, राइट, एंड फॉर सिविल सर्विसेज there is a set of values which we consider as foundation values. अगर वो values किसी व्यक्ति में ना हो तो वो सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएंगे, राइट. एंड दिस टेस्ट ऑफ, ये जो टेस्ट है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इस टेस्ट में डिफरेंट लेवल्स पर ये फाउंडेशनल वैल्यूज जो है वो चेक की जाती है, स्पेशली इन मेंस एंड इंटरव्यू, राइट. And same goes for other professions also. For every profession there are certain set of values which can be considered as foundational values, कि वो values अगर उस व्यक्ति में नहीं होंगी तो उस profession में वो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, कामयाब नहीं हो पाएंगे, right. So ऐसी values जिनके बिना आप सिविल सर्वेंट बन ही नहीं सकते, अगर मैं bluntly बोल दूं, ऐसी वैल्यूज जिनके बिना आप सिविल सर्वेंट बन ही नहीं सकते, वो है फाउंडेशनल वैल्यूज, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई कंसीडर व्हाट आर द फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर अ टीचर, राइट. सो अ टीचर शुड बी स्टूडियस. स्टूडियस होना पड़ेगा एक व्यक्ति को, तभी वो टीचर बन सकेंगे. इफ अ टीचर is not considering themselves as a student, then they can never become a teacher. एक टीचर को स्टूडियस होना बहुत जरूरी है हमेशा. they should remain in a constant state of learning. They should learn or they should explore more and more methods of communicating effectively, because at the end what they need to do is to communicate or to obviously teach, राइट. तो उसके लिए बेटर मेथड्स उनको डेवलप करने हैं. नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ टीचर. सो स्टूडियस होना चाहिए, ठीक है. कम्युनिकेशन जो है वो स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, राइट. देन डिसिप्लिन होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए टीचर. इस तरह की और भी आप कुछ वैल्यूज जो है वो नेम कर सकते हैं कि ये वैल्यूज जो है वो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए. टीचर जो है वो काम होना चाहिए, कूल होना चाहिए, सॉरी, राइट. कामनेस होनी चाहिए टीचर के अंदर, कूलनेस होनी चाहिए टू डील विद स्टूडेंट्स, स्पेशली इफ दे आर डीलिंग विद टीनेजर्स और यंगर चिल्ड्रन, राइट. सो कामनेस, कूलनेस होनी चाहिए उनके अंदर. बट आउट ऑफ दीज वैल्यूज अगर मैं कहूं दैट व्हाट आर सर्टेन, लाइक फॉर एग्जांपल एस्थेटिक्स, टीचर जो है वो प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए, एस्थेटिक स्ट्रांग होनी चाहिए उनकी, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और उनसे पढ़े, राइट. कई ऐसे एस्थेटिक्स को लेकर कई ऐसे मेथड्स टीचर जो है वो यूज करते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर टीचर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से पढ़ाने की, मतलब एंटरटेनमेंट के माध्यम से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. सो इट इज़ नॉट जस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, इट इज़ नॉट जस्ट एजुकेशनल बिजनेस, इट इज़ इंफोटेनमेंट, राइट. इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं और एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, तो एक नया टर्म इजाद हो गया, इंफोटेनमेंट. So such values are present in a teacher. But out of these, what are the foundational values of a teacher? What are the basic things that make someone a good teacher? Right? So do you think that a teacher having discipline or a punctuality or calm or coolness or aesthetics, right, can be a person having all these qualities can have or have good communication skills, can become a good teacher, right? और अगर उनके पास क्या ना हो, अगर वो स्टूडियस नहीं है, अगर वो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, राइट,
या अगर वो इफेक्टिवली नहीं पढ़ाते, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। सो विच ऑफ दीज वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट, मोर बेसिक, क्या लगता है आपको? सो ऑब्वियसली दीज वैल्यूज आर नॉट एज fundamental as these values. A teacher must be studious, research oriented, and be effective in their teaching, rather than how they are effective, rather than their discipline, punctuality, calmness, coolness. These are, we can say that these are secondary values, or these are supplementary values. These are not foundational values. Although the term supplementary and secondary values are not used in our syllabus, हमारे syllabus में foundational values term use हुआ है, but we must understand the difference. If there are foundational values, that means there are some supplementary values. And I'm not saying that these values are not important, right? These values are as important, or these not as important, but these values are also important. एक टीचर के अंदर डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, कामनेस, एस्थेटिक्स तो होना ही चाहिए, स्पेशली डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी, राइट? लेकिन अगर एक टीचर स्टूडियस ही नहीं होगा, रिसर्च ओरिएंटेड ही नहीं होगा, तो वो टीचर ही नहीं बन पाएगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? दैट इज फंडामेंटल वैल्यू, एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरी प्रोफेशन. So for civil services also, there are some basic required values that a person should have, possess and practice, that should be there in not just in their mind but also in their conduct, right? We need to understand about those basic fundamental values. So what we are saying, that if there are some fundamental values, then there are some supplementary ones. अगर कोई वैल्यूज फंडामेंटल हैं, फाउंडेशनल हैं, राइट, और प्राइमरी हैं, that means some values are supplementary, some values are secondary, right, some values are subordinate, जिनका होना भी जरूरी है, they are also important, but fundamental or foundational values are must. If they are not present, then that person simply cannot become, or is simply not fit for that particular profession, because these foundational values, they vary from profession to profession. We'll have such examples. These are must for a specific field. So for civil services, there are some values that are must for a person to have. Like for example, if we consider a judge in our judiciary, so what should a judge have, right? If a judge is punctual, then obviously they will be able to manage their time more efficiently, right? If a judge is tech savvy, then perhaps they would use better technologies to deal with their cases and other administrative duties, right? Or if a judge is innovative, perhaps they will be more, they can become, yeah, they could become more efficient in their working. But if a judge do not have integrity, or if a judge do not have impartiality or non-partisanship or honesty or neutrality, etc., that person can, फर्स्ट ऑफ ऑल, वो व्यक्ति जज बन ही नहीं पाएंगे, या बनाना ही नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति को जज, अगर उनके अंदर ये क्वालिटीज, ये वैल्यूज हैं ही नहीं तो. सो दीज आर दी फाउंडेशनल वैल्यूज टू बिकम अ जज, एंड दीज आर दी सप्लीमेंट्री वैल्यूज दैट कुड मेक देम अ बेटर जज, बट दीज आर दी फाउंडेशनल वैल्यूज दैट मेक्स देम अ जज.
that is must to become a judge, that are must to become a judge, and these are supplementary values that could make them a better judge, right? So I hope you guys now have a basic understanding of what are foundational and what are supplementary values. We will more focus on foundational values and will more focus on, obviously हमारे syllabus में civil services के लिए है, right? But we are trying to understand foundational values for different professions. So let's say judge के लिए देखा हमने, another profession is entrepreneurship. For someone to become an entrepreneur, what type of foundational values are required, are must? So the very first value that is must for an entrepreneur is courage. And what type of courage? There are many different types of courage, mind it. The courage to take risks, right? To take risks, because to understand, to know that the market is brutal, the open market is the most brutal one, right? And it could take them 1 year, 2 years, perhaps 3 years to break even. 1-2 साल हो सकता है घाटे में ही चलना पड़े. To understand the whole dynamics of the market and then to be able to take risks, that type of courage is required. That type of courage is fundamental for an entrepreneur, right? In this open global market where there are a lot of major players, if you want to leave your mark, you need to be, it is must to be innovative, because already चले आ रहे जो पुराने तौर तरीके हैं उससे आप एक नया मार्केट जो है वो अपने लिए नहीं बना पाएंगे, या ऑलरेडी एस्टेब्लिश मार्केट में अपने लिए स्पेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे. So you need to be innovative, you need to be savvy with the new technologies, with the new researches, with the new approaches to market and consumers. So you need to be innovative in that regard, right? You need to have empathy, right? That means you need to understand the needs, understand the minds of your consumers. एम्पैथी नहीं होगी तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे, इनोवेटिव नहीं होंगे आप तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे. दीज आर फाउंडेशनल वैल्यूज. अगर करेज नहीं होगा टू टेक रिस्क्स, यू विल नॉट बिकम एंटरप्रेन्योर. अनदर वैल्यू, फाउंडेशनल वैल्यू इज परसिवरेंस, राइट? इंडिया में बोला जाता है कि कोई भी धंधा आपको चलाना है तो पहले 2 साल तो एटलीस्ट आपको मानकर चलना है कि नुकसान होगा. तीसरे साल में हो सकता है that you could break even, and if you can sustain for 3 years, perhaps in the 4th or the 5th year you will start gaining something, आपको प्रॉफिट होने शुरू हो जाए. सो परसिवरेंस यानी कि परसिस्टेंसी बनाए रखना, पेशेंट रहना और मोटिवेटेड रहना, राइट? दीज आर some of the foundational values for an entrepreneur, right? Then let us look at a person. If a person want to join the armed forces, so for a armed forces personnel, what are the foundational values? So the very first foundational value is courage. And here the courage, किस तरह की courage है? The courage of self-sacrifice. In the face of danger to sacrifice one own's life, this type of courage is required, right? For a person जिन्हें जाना है कि specific field में in armed forces. So this is a must foundational value, right? Another foundational value is physical fitness. एक व्यक्ति फिट होना चाहिए, दैट मस्ट बी अ फाउंडेशनल वैल्यू, राइट? फिटनेस के प्रति जो है वो उनका फिटनेस शुड बी अ वैल्यू, नॉट जस्ट वैल्यू, इनफैक्ट वर्च्यू होना चाहिए उनका फिटनेस टू बिकम अ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, राइट? डिसिप्लिन इज अ फाउंडेशनल वैल्यू फॉर एन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल. आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को ज्यादा नहीं सोचना, उनको जो ऑर्डर्स मिला है वो फॉलो करना है.
चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना है। अगर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एम्पैथी डेवलप करने लग जाए और बैटलफील्ड में अगर वो सोचने लग जाए व्यक्ति कि सामने वाला जो मेरा दुश्मन है वो किस माइंडसेट से लड़ रहा है, उसकी भी क्या प्रॉब्लम्स होगी, उनको अगर समझने लग जाए तो कैसे रक्षा कर पाएंगे, कैसे गोली चला पाएंगे। सो एम्पैथी इज नॉट अ फाउंडेशनल वैल्यू फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। Discipline to follow the chain of command, to follow the orders of the seniors is the foundational value, right? Another is team spirit, right? Because especially in warlike conditions, a battalion is as strong as its weakest link, right? So जो weakest links हैं उनको जोड़ कर रखना, उनको इनफैक्ट स्ट्रांग करके रखना, कोशिश करना उनको स्ट्रांग बनाए रखे। सो टीम स्पिरिट जो है वो एक फाउंडेशनल वैल्यू है। अपनी बटालियन के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं फौजी। सो दीज आर सम ऑफ द फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। देन फाइनली व्हाट आर द फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, राइट? सो हमारे सिलेबस में बहुत सारी फाउंडेशनल वैल्यूज एक्चुअली मेंशन्ड है, बहुत सारी टर्म्स मेंशन्ड है, लाइक इंटेग्रिटी। इन द प्रीवियस सेशन मैंने आपको लिखवाया था, अदरवाइज आप सिलेबस जो है वो अपने पास से रखेंगे ही जो यूपीएससी ने प्रोवाइड किया है। सो बहुत सारी टर्म्स है, इंटेग्रिटी है, इम्पार्शियलिटी है, नॉन पार्टिसनशिप है, राइट? देन ऑब्जेक्टिविटी है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। सो दीज आर द टर्म्स जो कि हमारे सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है? दीज आर द फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट्स, फॉर सिविल सर्विसेज दैट यूपीएससी ने अपनी तरफ से मेंशन करी है। बट देयर आर मेनी अदर वैल्यूज जिन पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, सिलेबस में मेंशन नहीं है। सो वी विल कंसीडर दोज आल्सो। सो हम क्या करेंगे, हम ना डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप 1 2 कर लेते हैं। ए बी आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5, राइट? इन 5 ग्रुप्स में हमने फाउंडेशनल वैल्यूज को बांट दिया है। और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जाएंगे, डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट फाउंडेशनल वैल्यूज मौजूद होंगी, ठीक है? और एक ग्रुप में उस ग्रुप से मिलती जुलती वैल्यूज रखेंगे हम। सो इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप 1। सो ग्रुप 1 में हम फाउंडेशनल वैल्यू को रखेंगे इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी एंड प्रोबिटी को। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी एंड प्रोबिटी को, right? In today's session we will try to understand what is integrity and what is the relationship between integrity and honesty, right? Because many a times all these three terms are used, कई बार जो है वो इनको interchangeably यूज कर लिया जाता है, especially integrity and honesty को। But we will go into technicality of these terms. We will try to understand that how these terms are different and what are the relationship between these terms, how integrity is different from honesty, and if it is different, whether there is some relationship between them or among these or not. So group 1 is integrity, honesty and probity. So here integrity is mentioned in our syllabus, honesty is not mentioned in our syllabus, and probity is mentioned in chapter 7. So in under chapter 7 also we'll discuss probity, but probity हम यहाँ से भी थोड़ा पढ़ लेंगे और chapter 7 में भी जाकर पढ़ेंगे, right? Then comes group number 2. So 3 वैल्यूज ही हो गई। ग्रुप नंबर 2, वैल्यू नंबर 4 ऑब्जेक्टिविटी, impartiality, then non-partisanship,
and neutrality. So these are the next 4 values. Objectivity is mentioned in our syllabus, impartiality is mentioned in our syllabus, non-partisanship is mentioned in our syllabus, neutrality is not mentioned in our syllabus. Nevertheless, यूपीएससी ने न्यूट्रलिटी पर क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने यहाँ पर ऑनेस्टी पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है. न्यूट्रलिटी इज नॉट मेंशन्ड इन आवर सिलेबस, येट वी विल कवर दिस. एंड अंडर ग्रुप 2 दीज आर दी वैल्यूज. इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंसेस है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. देन ग्रुप नंबर 3, value number 8 that we will study is empathy. Right? Value number 9 is tolerance. 10 is compassion. Towards the weaker section. So these 3 values are related with each other. If they are related with each other, we will try to understand what is the relation, what is the difference between them. Empathy is mentioned in our syllabus, but empathy के साथ हम sympathy भी पढ़ेंगे. Sympathy is not mentioned in our syllabus, but nevertheless UPSC has asked questions. Tolerance and compassion towards weaker section is mentioned in our syllabus. Sympathy is not mentioned, yet we will cover this. Right? Then group number 4. Here we have values such as perseverance, which is the value that is mentioned in our syllabus. Rest of the values under this group are not mentioned, such as patience. Right? Then persistence, fortitude. These are the values जिन पर क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ लिया, बट दे आर नॉट मेंशन्ड इन आवर सिलेबस. एंड हमने इसको ग्रुप 4 में रखा है बिकॉज दे आर समहाउ रिलेटेड विद ईच अदर. अदरवाइज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशन अमंग दीज वैल्यूज. देन ग्रुप नंबर 5, commitment. Right? Dedication to public service. Now dedication to public service is mentioned under topic 3 in our syllabus. Commitment mention नहीं किया गया. Then we have spirit of service. इन पर यूपीएससी ने सवाल पूछा है. कमिटमेंट पर, स्पिरिट ऑफ सर्विसेज पर क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, मेंशन नहीं है सिलेबस में. देन करेज ऑफ कन्विक्शन. अनदर फंडामेंटल फाउंडेशनल वैल्यू. हम इसे ग्रुप 5 के अंडर पढ़ेंगे. देन ग्रुप 5 तक नहीं है कहानी. ग्रुप देयर इज अ ग्रुप 6 ऑल्सो. Value number 19, which are mentioned of the group 6 की जो values है, they are mentioned in topic number 6 and 7 या chapter number 6 और 7 में mentioned है. ठीक है, बट हम कोशिश करेंगे यहाँ उन्हें समझने की. चैप्टर नंबर 6 और 7 में भी समझेंगे. लाइक अकाउंटेबिलिटी, राइट, लाइक responsibility, transparency, trustworthiness, right? And finally
ग्रुप 7 होगा हमारा, जिसमें एक ही वैल्यू होगी हमारी, दैट इज anonymity. We'll discuss anonymity under group 7. So anonymity क्या होता है? Like for example, अगर आप एक DM हैं और अगर आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं तो आप अपना प्रचार नहीं करेंगे that XYZ person is working wonders as DM of ABC district, right? नाम आपका नहीं होगा, नाम पोजीशन का होगा, that DM ने ये काम किया, ना कि XYZ व्यक्ति ने ये काम किया, right? So that is very basic meaning of being anonymous. So these are the 7 groups under which we will try to understand the foundational values of civil services. And first we will start with integrity. So these are the terms that we need to understand: integrity, honesty, probity, objectivity, impartiality, non-partisanship, neutrality, empathy, sympathy, tolerance, compassion towards weaker section, perseverance, patience, persistence, fortitude, commitment, dedication to public service, spirit of service, courage, accountability, responsibility, transparency, trustworthiness, and finally anonymity. So these are the foundational values for civil services, and we will try to understand all these, right, in different groups, and we will try to understand different groups के according हम समझने की कोशिश करेंगे the relationship between or among these values. All right, now let us start with the first group, that is integrity, probity, and honesty. Right, so generally they are considered the same, or at least integrity और honesty जो है वो लेमन भाषा में integrity और honesty को इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है इन दोनों टर्म्स को, राइट? और कई बार जब हम डिफाइन करने की बात करते हैं तो हाउ वी डिफाइन ऑनेस्टी, हम ऑनेस्टी को डिफाइन करते हैं एज अ स्टेट ऑफ नॉट बीइंग ऑनेस्ट, सॉरी नॉट बीइंग डिसऑनेस्ट. सो डिसऑनेस्ट ना होना क्या ऑनेस्टी है? नो, दैट इज नॉट हाउ. आपको डेफिनेशंस इस तरह नहीं क्रिएट करनी चाहिए, इस तरह नहीं डिफाइन करना चाहिए, और आपको इस तरह समझना भी नहीं चाहिए, ठीक है? although you should understand the concept that a state of not being dishonest is honesty, but that is not what honesty is as a whole. There are और भी बहुत सारे components हैं honesty के. There is one out of those components, one of is the absence of dishonesty, right? So हमें इस तरह नहीं समझना है. What is integrity? The absence of dishonesty, right? The absence of hypocrisy is integrity. No, we will not understand in this manner. So both of this probity and integrity are somehow connected with honesty. Rather हम कहें कि in specific conditions, honesty becomes integrity, and honesty could become probity. So it is in specific conditions honesty becomes integrity. So that means there are links that are missing. अभी हमें समझना है कि क्या है, right? But right now we can understand that, or let me put it this way, that integrity is the highest levels of honesty. Integrity is the highest levels of honesty. That is what integrity is. Although we'll discuss in details the difference between honesty and integrity, right? But first of all, let us start with एक बार integrity को समझ लेते हैं पहले, then we'll try to understand the relationship between honesty and integrity. So integrity, ये term कहां से निकला है?
सो एटिमोलॉजिकली स्पीकिंग लैटिन वर्ड इंटीजर से निकला है ये। आपने सुना होगा समथिंग इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस थिंग, राइट। इन मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंटेग्रिटी या इंटीजर या इंटीग्रेशन टर्म का यूज किया जाता है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल मैथ्स में आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे, पूर्णांक हिंदी में कहा जाता है। सो इंटीजर्स आर पूर्णांक बिकॉज दे आर कंप्लीट, ठीक है। सो व्हाट आर इंटीजर्स? 1 2 3 9 18 57, these are integers, these are complete numbers, right? There is an infinity of rational irrational numbers between 1 and 2, right? But 1 and 2 are not dependent on any other number. A rational number, right, it is dependent on other number, right? क्योंकि आपको रेशो बतानी है। अगर यहां पर बीच में 1/2 है, सो दिस नंबर इज डिपेंडेंट ऑन टू नंबर, 1 और 2 दोनों की प्रेजेंस जरूरी है 1/2 एज अ रैशनल नंबर बनाने के लिए, राइट। बट इंटीजर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी नंबर, दे आर कंप्लीट, दे आर होल ऑन देयर ओन, राइट। दे आर परफेक्ट, दे आर टोटल, दे आर इंडिपेंडेंट। सिमिलरली मैथ्स में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इंटीग्रेशन का, राइट। ये वाला साइन हम यूज करते हैं 0 से 1, राइट। सो इंटीग्रेशन मैथ्स में, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या अप्लाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में हम पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, राइट। सो इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ सर्किट जिसमें जो जितने भी सब सर्किट्स हैं दे आर वर्किंग परफेक्टली। सो हम कहते हैं कि इट इज अ स्टेट ऑफ इंटीग्रेशन इन अ सर्किट, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अ स्टेट ऑफ इंटीग्रेशन इज अ स्टेट वेयर all the circuits are working perfectly as they are intended, right? In the field of communication and many other fields, integration integer से related जो है वो different words को use किया जाता है different meanings में। So in the field of communication, when there is, जब ऑडियो वीडियो सही अच्छे से ऑडियंस तक पहुंच रहा हो, सो दैट इज अ स्टेट ऑफ इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन और इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, राइट। लेकिन जब भी हम इंटीग्रिटी वर्ड इन सभी एप्लीकेशंस के अलावा, रूट वर्ड इंटीजर की डिफरेंट फील्ड में, जब भी हम इंटीग्रिटी टर्म सुनते हैं तो जनरली इट इज रिलेटेड विद द फील्ड ऑफ एथिक्स, विद द वर्ल्ड ऑफ एथिक्स से जुड़ा होता है इंटीग्रिटी, राइट। सो व्हाट वी कैन से दैट इंटीग्रिटी इज प्राइमरली इट इज लिंक्ड विद द वर्ल्ड ऑफ एथिक्स, राइट। सो व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी? आमतौर पर हम क्या समझते हैं इंटीग्रिटी को? राइट। सो एक तो मैंने आपको बताया दैट इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी, राइट। इट इज ऑनेस्टी एट हाईएस्ट लेवल और रॉक सॉलिड ऑनेस्टी। So being an integral person means that you're a rock solid honest person, right? But what about if no one is watching you? If you are honest, if you have an image of being honest,
That means whenever you are around people, you behave, your conduct is honest. You behave in an honest manner, right? That is how people know you as an honest person. But what about when you are alone, when no one is watching you, when only you are watching yourself? In that alone time, in that me time, if you are behaving honestly, if you are being honest with yourself, that is the state of integrity, right? That is the general meaning of integrity. When no one is watching you, you are watching yourself. So being honest when no one is watching, so if you are honest when no one is watching, if you are only honest for the sake of others, to project an image of you being an honest person, then you lack integrity. You have integrity when you conduct honestly, for not just for the sake of honesty, but as a value. You practice it as a value. It is your value system, right? And you do not behave differently in your alone time. You behave the same in your alone time also. You conduct honestly when no one is watching also. That is the state of integrity, and that is the general meaning of integrity. Being honest even when you are by yourself, right? So what other general meanings of honesty आप कह सकते हैं, क्या होता है और उसके अलावा? So there are many different terms, right? So जनरल मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी, बिकॉज हम एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं समझेंगे जो कि हमारे सिलेबस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना, बट जनरल मीनिंग क्या है? बीइंग ऑनेस्ट व्हेन नो वन इज, पहला तो ये बीइंग ऑनेस्ट व्हेन नो वन इज वाचिंग. देन ट्रांसपेरेंसी आप कह सकते हैं, you have transparency in you. Then you have trustworthiness, right? You have authenticity, dependability, right? But we have not yet covered, we have not yet understood all these terms. हमने इन सभी टर्म्स को नहीं समझा है. सो जनरल मीनिंग में हम एक सिंपल स्टेटमेंट डाल देते हैं, दैट हैविंग ऑलमोस्ट 100% कंसिस्टेंसी बिटवीन योर वैल्यूज एंड योर कंडक्ट, दैट इज इंटेग्रिटी. हैविंग ऑलमोस्ट 100% कंसिस्टेंसी between your values and your conduct. So आपका value, if you have a value system of being honest, right, but you are not honest when you are left alone, you do not behave honestly when you are left alone, so you lack integrity. So in almost all conditions, in almost all situations, if there is consistency between your values and your conduct, now I suppose those who have attended previous sessions, they know the difference between conduct and behavior. So when we are concerned with the sphere of morality and immorality, when we are concerned with the sphere of our fear, our free will, when we are not getting forced, when we are not intoxicated, right, all of those actions, moral and immoral, are considered under our conduct, right? So if there is consistency, almost 100% consistency between your values and conduct, then it is said that that person has integrity, right? But क्या ये एक blanket statement के माध्यम से हम integrity का concept अच्छे से समझ गए, या हमें एक framework समझना पड़ेगा कि if we need to judge someone that whether that person has integrity or not, सो क्या हम फ्रेमवर्क लगाएं, उस फ्रेमवर्क में उस व्यक्ति के कंडक्ट को रखें
और फिर जज करे दैट पर्सन हैज इंटेग्रिटी और नॉट, राइट? विल दैट बी स्पेसिफिक इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इंटेग्रिटी इज? सो लेट अस लुक एट द framework for integrity. All right, so that means we need to understand what is the checklist to decide if someone has integrity or not. So एक checklist बना लेते हैं. So पहला फैक्टर क्या डालेंगे हम यहाँ पर? A person should have a clear cut value system. एक वैल्यू सिस्टम होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए उस व्यक्ति को, दैट व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज आई हैव. इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एक लिस्ट बनाकर रखनी है, जेब में रखनी है लेमिनेट कराकर, दैट आई हैव दीज वैल्यू सिस्टम्स और दिखा दी लोगों को. नहीं, इसका मतलब ये नहीं. इन देयर माइंड अ पर्सन मस्ट हैव अ क्लियर कट वैल्यू सिस्टम, दैट व्हाट आर द वैल्यूज, what are the different values that I must follow in different conditions, right? Clear cut value system होना चाहिए. एक लिस्ट, ऑब्वियसली एक माइंड में एक लिस्ट जो है वो होनी चाहिए. एंड डू दिस, प्रैक्टिस करो आप इसे, ये एक्सरसाइज को कीजिए, बैठकर जो है वो सोचिएगा कि आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, क्या क्या वैल्यू सिस्टम है आपका. सेकेंड इज, person must have a clear cut hierarchy of these values. Right? Because if someone has value system, right, that means that, and daily basis पर हम कई dilemmas face करते हैं, right, and we decide on those dilemmas on basis of our value system. वैल्यू सिस्टम सबके अंदर है, राइट? आपको वो अपना वैल्यू सिस्टम पहचानना है, ठीक है? फिर आपको देखना है कि आप किस हायरार्की में रख रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, दो वैल्यूज हैं, अ वैल्यू ऑफ बीइंग जुडिशियस एंड वैल्यू ऑफ बीइंग काइंड, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल, यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर, एक सिविल सर्वेंट है, आप हायर पोजीशन पर है, और आपके ऑफिस में लेट्स से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई, और वो क्रिमिनल एक्टिविटी एक आप ही के ऑफिस के किसी व्यक्ति ने करी है, राइट? नाउ विल यू एक्ट जुडिशियसली और विल यू एक्ट काइंडली? सो आप वो केस को पहले सुनेंगे, क्यों उन्होंने ये क्रिमिनल एक्टिविटी करी. परहैप्स कोई उनका इशू रहा होगा, तो यू विल शो एम्पैथी, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज, व्हाट देयर, उनका वर्जन क्या है सिचुएशन का. सो उन्होंने आपको बताया कि ही इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फैमिली, एंड इट इज अ फैमिली ऑफ 8 people, वेयर 3 people आर ओल्ड एंड दे आर डिपेंडेंट, दे रिक्वायर मेडिकल अटेंशन, उनकी मेडिसिन बहुत महंगी है, और जितनी सैलरी उनकी है या जो भी सोर्सेज है उनके इनकम के, दोज आर नॉट सफिशिएंट, and it was a situation of life and death, and that is why they committed that act, right? Now I'm not asking for an answer from you, मैं जस्ट आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं जिसमें आपकी दो वैल्यूज, बीइंग जुडिशियस एंड बीइंग कंपैशनेट, एक दूसरे को चैलेंज कर रही हैं यहां पर, राइट? एंड इफ यू डू नॉट हैव अ क्लियर कट हायरार्की ऑफ वैल्यूज विद यू, दैट इन सच सिचुएशंस व्हाट, विच वैल्यू वुड यू प्रेफर, और किस वैल्यू को आप ऊपर रखेंगे, ठीक है? सो सेकेंड इज, पर्सन मस्ट हैव अ हायरार्की ऑफ वैल्यू, क्लियर कट हायरार्की ऑफ वैल्यूज. देन थर्ड इज, अब ये जो हायरार्की ऑफ वैल्यूज है, या क्या वैल्यू सिस्टम है आपका, ये आर्बिट्ररी तो नहीं हो सकता ना, इसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए. सो रीजनेबिलिटी ऑफ वैल्यूज एंड हायरार्कीज, राइट?
That is how you judge someone if someone has integrity or not. If that person acted right, let's say यहां पर किसी व्यक्ति ने अपनी जुडिशियस वैल्यू को ऊपर रखा, तो पहली बात तो वो वैल्यू क्यों है उनके अंदर, उसका रीजन होना चाहिए, और उस वैल्यू को उन्होंने हायरार्की पर काइंडनेस के ऊपर क्यों रखा है उसका रीजन होना चाहिए उनके पास. इफ दैट पर्सन हैज, अब वही सेम सिचुएशन में एक दूसरा व्यक्ति है जिसने काइंडनेस को जुडिशियस वैल्यू के ऊपर रखा. दो सिचुएशन है, दो अलग अलग व्यक्ति, एक व्यक्ति ने काइंडनेस को ऊपर रखा, एक व्यक्ति ने जुडिशियस जो उनकी ड्यूटी है उसको ऊपर रखा, राइट. बट बोथ दीज पर्सन हैज solid reasons for choosing these values and solid reasons for keeping these values in this hierarchy, right. That means that both these person has integrity. समझ रहे हैं? There is no, अभी मैं right और wrong की बात नहीं कर रहा हूं कि क्या सही है क्या गलत है, अभी मैं बात कर रहा हूं having integrity. integrity है या नहीं है, right. Then fourth is having almost perfect or almost 100% consistency between values and conduct. Right? Clear cut set of values होनी चाहिए और वो values conduct के साथ consistent भी होनी चाहिए. राइट, तो ये हमने बेसिक मीनिंग से उठाया ही, बट उसके अलावा ये सभी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इंटेग्रिटी के. दैट देयर शुड बी अ क्लियर कट वैल्यू सिस्टम, देयर शुड बी अ क्लियर कट हायरार्की ऑफ वैल्यूज, देयर शुड बी अ रीजनेबिलिटी बिहाइंड दोज वैल्यूज एंड दैट हायरार्की. देन देयर शुड बी 100 almost 100% consistency between values and conduct, right. Then you can add another one. There must be a reasonable explanation for all deviations and contradictions. All deviations and contradictions. Now let's say a person has a set of values and has a hierarchy of those values and is almost 100% consistent, right. That person's conduct is almost consistent with the set values and hierarchies, but there are some situation where that person behaved or conducted deviantly, right, or there was a contradiction between their values and conduct, or there was a contradiction in the hierarchy of the values, like in one condition that person managed or that person practiced the hierarchy A, B, C, right, and in another condition that same person for these three values a person practiced the hierarchy A, B, C, and for another condition the same person practiced the hierarchy, let's say B, C, A, right. So here we have inconsistency in the hierarchy, right, we have the inconsistency in the value and conduct also. But if there is a reasonable explanation behind this contradiction and deviation, that reasonable explanation also falls, that reasonable deviation and contradiction also falls under the framework of integrity. Because we cannot perform, इसलिए मैं almost 100% बोल रहा हूँ ना, because हर कुछ ना कुछ स्कोप जो है वो चेंज का सिचुएशन तो अलग अलग हो ही सकती है, देयर इज अ स्कोप ऑफ चेंज, राइट. तो ये रीजनेबल एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट रखना यहाँ पर जरूरी है, बिकॉज हम एब्सोल्यूट मानकर नहीं चल सकते इंटेग्रिटी को भी. इन द फील्ड ऑफ एथिक्स देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट, देयर इज नो सच थिंग एज 100%, राइट. So this is the framework of integrity. Now let us understand what are the types of integrity. Right.
So there are basically 3 types of integrity. वैसे तो बहुत सारी डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन है इंटेग्रिटी की, बट जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटी. प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, पर्सनल इंटेग्रिटी, और एक यूपीएससी ने सवाल पूछा है इस पर, इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी. सो प्रोफेशनल, पर्सनल and intellectual integrity. We will try to understand these 3 type of integrities. I hope now you have good understanding of what integrity is, right? अगर नहीं समझे तो चलो ये टाइप्स हम समझेंगे, और इसके बाद इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी का आपस में रिलेशनशिप देखेंगे. परहैप्स तब आपको अच्छे से समझ आ जाए, राइट? सो first is professional integrity. So किसी भी आप प्रोफेशन में होंगे, राइट? कोई भी प्रोफेशन अगर आप परस्यू करते हैं, in this case you want to pursue civil services as a profession. So every profession has set of required or foundational values and standards, and if your conduct is consistent with those set of required values and standards, it can be said that you are a person of professional integrity, right? If there is almost perfect consistency between the values, between these required values of that particular profession and your conduct in that particular profession, if there is almost 100% consistency, then it is to be said that you possess professional integrity. So since हम किसी प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट प्रोफेशंस में रिटन हमें जो है वो देखने को मिलते हैं कोड ऑफ एथिक्स, और रिटन जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट्स देखने को मिलते हैं. ऑलरेडी लिखा होता है, ठीक है? कोड ऑफ कंडक्ट, किसी ऑफिस में कोड ऑफ कंडक्ट क्या होंगे, राइट? किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में क्या एथिक्स आपको फॉलो करने हैं. लाइक मेडिकल प्रोफेशन में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो है वो, या उससे पहले भी उनको क्लासेस लगाई जाती है मेडिकल एथिक्स की, राइट? सेम लॉयर्स को जो है वो एथिक्स की क्लासेस लगानी पड़ती है. डिफरेंट प्रोफेशन में पढ़ाई के दौरान जो है वो कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाए जाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के. जैसे सिविल सर्विसेज में एंटर करने के लिए आपको सिविल सर्विसेज के लिए क्या एथिक्स, क्या रिक्वायर्ड है, फाउंडेशनल वैल्यूज, वो पहले से पढ़कर आपको जाना है, ठीक है? देन द लैंड ऑफ द लॉ, the law of the land, the constitution, various laws, various acts, various rules, various regulations, they also set the tone for what should be the required values and what should be the required conduct. And if there is 100% consistency, almost 100% consistency between values and conduct, then it is said that person has professional integrity, right? Then there are code of judgments, जो कि case laws होते हैं. Like in case of right to privacy, for medical practitioners, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दे मस्ट मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ देयर क्लाइंट्स. देन सेम द मेडिकल practitioners, they undergo through a course of ethics, right? Ethics in medicine. Then their own, they follow their own departmental code of conduct, right? They follow the guidelines of Indian Medical Association or ICMR, Indian Council of Medicine Research, या medical research, या whatever organization they are following, they follow their code of conducts.
So in any profession there are certain set of values, there are certain set of code for ethics and conduct, and also the law of the land, various acts, various rules, various case law, all of them provide information about what should be the values and what should be the conduct. And if there is consistency between values and conduct, then it is said that person has professional integrity. Like in case of medical, there is a Hippocratic oath जो है वो दिलाई जाती है फाइनली स्टूडेंट्स को, to do no harm. Hippocrates was a Greek medicine practitioner जो अपने स्टूडेंट्स को ये समझाता था कि you have the ability to harm someone because you have the knowledge, right, कि क्या खिलाना है जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाए, मर जाए, बीपी ऊपर बीपी नीचे, राइट. सो आपको कसम लेनी पड़ेगी, आपको ओथ लेनी पड़ेगी टू डू नो हार्म. सो हिपोक्रेटिक ओथ दिलवाई जाती है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को टू डू नो हार्म. So if a person is following all these code of conducts, the code of ethics, the laws, the rules, the regulations, right, and has consistency between that person's values and conduct, then that person is said to be having professional integrity. Then second is personal integrity. Now out of our professional lives, all of us have our personal lives, right, and here personal value system are responsible. In case of professional integrity, responsibility जो है वो किसकी है? कोड ऑफ कंडक्ट की, कोड ऑफ एथिक्स की, कॉन्स्टिट्यूशन और वेरियस लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट्स, केस लॉज, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इन केस ऑफ पर्सनल इंटेग्रिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? Personal value system is the responsible. And if there is full or complete adherence with the personal value system, the person is said to be having personal integrity. So वही है सेम, बस अब पर्सनल लाइफ के लिए है. ठीक है, पर्सनल लाइफ यानी कि योर ओन रिलेशनशिप्स, योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, योर फैमिली रिलेशनशिप्स और योर friendly relationships, and for that matter people that work for you closely, like your domestic help, right, people that are engaged with your family, even if they are working for you, but if they are engaged with your family, you have a personal relationship with them, right. And if you are treating them, and if you have a set of value system of your own, personal value system, if you have a hierarchy of that, and it is reasonable, and you are almost 100% consistent with that particular value system, then you have personal integrity. Right. So your personal integrity makes you dependable, makes you trustworthy in your friend circles, in your family, right. Your professional integrity makes you competent, makes your image that you are a competent person, right, makes an image of dependability, that your seniors can depend on you, that you will get the job done, right, when the time is right you will get the job done. डिपेंडेबिलिटी डेवलप होती है प्रोफेशनल इंटेग्रिटी में, राइट. पर्सनल इंटेग्रिटी में भी यहां पर भी सेम है, डिपेंडेबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, ऑथेंटिसिटी बढ़ती है आपकी. एंड थर्ड इज इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी. नाउ प्रोफेशनल और पर्सनल इंटेग्रिटी, ये तो बहुत सिंपल था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था समझने के लिए, है ना. जो प्रोफेशनल लेवल पर सेट ऑफ वैल्यूज है उनको अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, कंडक्ट में रहेंगे, आप प्रोफेशनल इंटेग्रिटी है आपके अंदर. पर्सनल लाइफ में आपकी जो पर्सनल सेट ऑफ वैल्यूज है उनके साथ आप कंसिस्टेंट रहेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल आप कंपैशनेट है अपने एक
ब्रदर सिस्टर के लिए, बट अपने दूसरे ब्रदर सिस्टर के लिए आप उतना कंपैशनेट नहीं है, राइट? वो ब्रदर सिस्टर में आपस में राइवलरीज, लड़ाई झगड़ा चलता है, बट एट योर कोर इफ यू आर नॉट, अगर आप इस तरह से बायस्ड है अपने ही रिलेशनशिप्स को लेकर, सो यू लैक पर्सनल इंटेग्रिटी, राइट? सो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लाइक इन वन केस, अगर अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग भावनाएं हो आपके अंदर, एक ही व्यक्ति के लिए दो अलग अलग सिचुएशन में, राइट, आप अगर दो अलग अलग कंडक्ट दिखा रहे हैं, योर वैल्यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद योर कंडक्ट, यू लैक पर्सनल इंटेग्रिटी। हो सकता है कि आपकी कंडीशन कुछ और हो, राइट, बट डिफरेंट, मान लीजिए आपका कोई सिबलिंग है, भाई बहन है आपकी, आपको परेशान कर रहा है बहुत, इस हद तक आपको परेशान कर दिया दैट आप उठकर खड़े हो जाएं और आपने मतलब फिस्ट क्लेंच की हुई है एंड यू आर अबाउट टू पंच देम आउट, यू आर अबाउट टू पंच देम एट देयर थ्रोट, राइट, बट यू डोंट डू इट, व्हाई? बिकॉज मतलब जाएंगे वो, हो सकता है नाक नुक से खून निकल जाए और फिर माता पिता आपकी सुटाई करें, राइट? सो आपने क्या दिखाया वहां पर? रिस्ट्रेंट, आपने दिखाया वहां पर कंपैशन, ठीक है? लेकिन वो तब आपने जब आपने अच्छे मूड में थे आप, लेकिन हो सकता है कभी आपका मूड अच्छा ना हो, सेम सिचुएशन बनी, दिस टाइम आप खुद को नहीं रोक पाए, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहा और आपने जड़ दिया गुस्सा नाक पर सीधा, राइट? सो नाउ योर कंडक्ट इज नॉट कंसिस्टेंट विद योर वैल्यू, so you lacked personal integrity there. So personal integrity also means that you have control over your emotions, controlling your emotions, ठीक है? Next is intellectual integrity. So we have various principles, on those principles we behave, on the basis of those principles, right? Like for example, इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी कहां नजर आती है? हमारे प्रिंसिपल्स में नजर आती है, द प्रिंसिपल्स दैट वी फॉलो, द प्रिंसिपल्स दैट वी बिलीव इन, if those principles are consistent, coherent, reasonable vis-a-vis the values, right, then we can say that we possess intellectual integrity. Like for example, while judging someone, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी that we are the fastest judge for others and the strongest advocate for ourselves, right? खुद के लिए सबसे खतरनाक एडवोकेट होते हैं, खुद की वकालत बहुत जबरदस्त करते हैं और दूसरों के लिए जज बनकर बैठ जाते हैं। So when you are judging someone, so you are judging someone on the basis of your value systems, on the basis of the principles that you believe in, right? But if you are judging someone and judging self on same parameters, right, ऐसा नहीं है कि दूसरे को जज कर रहे हैं आप बिल्कुल खतरनाक तरीके से और खुद को डिफेंड करे जा रहे हैं कि भैया हम तो ऐसे नहीं हैं, राइट? अगर आप खुद को और दूसरों को सेम तराजू में तोल रहे हैं, देन यू पोजेस इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, राइट? दूसरों को आप ब्लेम किए जा रहे हैं, दूसरों को आप जज किए जा रहे हैं और खुद को अगर आप नहीं जज कर रहे हैं, खुद को आप डिफेंड किए जा रहे हैं, सो यू लैक इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, द प्रिंसिपल्स दैट यू बिलीव, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू बिलीव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म, राइट, और कम्युनल हार्मनी, but some members or let's say all of your family they have a communal mindset, ठीक है? आपका फैमिली का कम्युनल माइंडसेट है एंड लेट्स से नॉट कम्युनल माइंडसेट, आपकी फैमिली रेसिस्ट है लेट्स से, और आपकी फैमिली कास्टिस्ट है, राइट?
सो व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? क्या कर सकते हैं आप इसके बारे में? सो इफ यू पोजेस इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, यू विल स्टैंड अप फॉर योर प्रिंसिपल्स. आप जो है वो अपने फैमिली के अगेंस्ट खड़े होंगे. यू विल प्रेजेंट देम विद ऑथेंटिक फैक्ट्स दैट यू कैन प्रोवाइड, राइट, दैट यू बिलीव टू बी ऑथेंटिक. बट जहां तक मैं आप लोगों को बोलता हूं कि दैट यू शुड चूज योर बैटल्स केयरफुली, राइट. as far as you are students एंड अपनी फैमिलीज में अपने खासतौर पे बड़े जो एल्डर्स हैं उनके साथ बहस करने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, उनके दिमाग के वो न्यूरल पाथवे जो है वो सेट हो गए, क्रिस्टलाइज हो गए. तो बड़े बुजुर्गों का माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल होता है. आप उनको हिंट दे सकते हैं कि आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, और थोड़ा बहुत हिंट ड्रॉप कीजिए, देखिए क्या वो रिस्पॉन्सिव हैं उसके प्रति या नहीं. बिकॉज आप लोग सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, काफी डीप लेवल पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आपके पास अदर सोर्सेज भी हैं पढ़ने के लिए. सो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है वो आपको मिल रहे हैं, तो काफी अच्छा खासा आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक्सपैंड हो रही है, राइट. बट हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स का ऐसा ना हो. सो नाउ इफ यू गो एंड ट्राई टू चेंज देयर माइंडसेट, सो it would be difficult for you to change their mindset. So learn to choose your battles, avoid करें इस तरह के discussions. But if you stand up for your principles that you believe in, you possess intellectual integrity, right? Because मैंने आपको समझाया था, getting persuaded by someone is painful for us sometimes, ठीक है. Then same another, like if you believe in some principle, some logic, right, and if you can stand up with your value system, with your thoughts, with your principles, with your logic, you possess intellectual integrity. If you have the courage to speak in front of, let's say, a lot of people, they have entered into selective avoidance and biased assimilation, and yet you trust or you have enough confidence in your thoughts that you stand up against them. So you possess intellectual integrity. So all those people जो अपने belief, अपने value system पर पूरा उनको भरोसा है, and they stand in support of them despite of all the opposition, they possess intellectual integrity, right? Like for example, Bhagat Singh, he just not willing to die, he died for his principles, right? महात्मा गांधी पूरे जीवन बोलते रहे कि मैं अपने प्रिंसिपल से नहीं हटूंगा, चाहे मुझे मरना पड़ जाए, मारे गए आखिरी में. देयर आर अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट इन यूरोप जो अपनी इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी के चलते दे वर बर्न्ड बाय द चर्च एट स्टेक, लाइक ब्रूनो. जीसस वाज क्रूसिफाइड. A lot of people throughout the history are mutilated, tortured and killed for their intellectual integrity. Like many of the Sikh gurus are tortured and killed for their intellectual integrity, for their principles, for their moral standards, because they refuse to deviate, right? So these are the different types of integrity: professional, personal and intellectual. Now next let us understand क्या integrity का फायदा भी होता है या नहीं. So benefits of integrity. Benefits of integrity, right? Now since हम civil services के लिए पढ़ रहे हैं, तो benefit of integrity in administration, in for civil services, right? अदर प्रोफेशंस के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं. सो द वेरी फर्स्ट बेनिफिट जो इंटेग्रिटी आपको आपकी इंटेग्रिटी का मिलेगा, दैट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग राइट एंड डूइंग द राइट थिंग. I don't know at what level of your life you are, but guilt is something that eats you up. It manifests itself physically,
right? Or it creates different type of medical conditions in our body, right? Not just physical but psychological issues जो है वो guilt बहुत कुछ create करता है. और guilt आता है if you have done something wrong, right? If you have those set of values and if you have the hierarchy, if you have the intellect to understand all these concepts, if you have the now you अब इस सेशन के बाद now you understand what is integrity. और अगर आप सोचेंगे that what is my value system, how I place different values, so what is the hierarchy of my value, what is the reason behind that hierarchy, right? And now from now onwards, if you try to keep your conduct consistent with your value, so you will become an person with integrity. And if एक सिचुएशन आती है जहां पर आप इंटेग्रिटी के साथ नहीं परफॉर्म कर पाए या एक्ट नहीं कर पाए, तो गिल्ट की जो फीलिंग है वो बहुत खतरनाक है, आपके साथ जीवन भर रहेगी. हो सकता है ऐसी घटनाएं आपके जीवन में ऑलरेडी हो चुकी हों जिनका गिल्ट जो है वो आपको खा रहा हो अभी भी, राइट? लेकिन सिविल सर्विसेज में अगर आपने इंटेग्रिटी मतलब आपका कंडक्ट जो है वो इंटेग्रिटी भरा रहा, तो बहुत सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा, राइट? इट विल बिल्ड योर ओन सेल्फ एस्टीम. बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इमोशन है, ठीक है? बिल्डिंग और स्ट्रेंथनिंग ओन और सिंपली सेल्फ एस्टीम. सो सेल्फ एस्टीम or respect is for self, it is for person. And prestige एक और टर्म यूज किया जाता है. prestige is of the position. prestige जो है वो आपकी चेयर की होगी, और सेल्फ एस्टीम और रिस्पेक्ट जो है वो किसका होगा? पर्सन का होगा. सो अगर आप में इंटेग्रिटी है तो इन सिविल सर्विसेज it will boost your self esteem or self respect, and that's a very positive. तभी आपने देखा होगा सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो मेजॉरिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स दे रेडिएट बहुत अच्छी हेल्थ जो है वो आमतौर पर आपको उनकी देखने को मिलेगी. और पर्सनैलिटी वाइज भी अगर आप उन्हें देखेंगे, फिजिकल अपीयरेंस में अगर मैं बोलूँ उनकी बॉडी एस्थेटिक्स की बात करूँ, तो आपको वो काफ़ी लगेंगे प्लीजिंग, और आपको बेसिकली आपको हेल्थ नज़र आएगी काफ़ी उनकी, बिकॉज दे आर, if they have integrity, they are very satisfied with their jobs. And if they are satisfied with their jobs, na, it appears in their body, it appears on their face, right? So it's the feeling of satisfaction of doing something right एक बहुत ही strong feeling है, because we are आपने बचपन से सुना होगा that a human is a social animal, right? So it is encoded in our genes to do something good for our community that ensures the collective survival of the community. It boosts positive hormones और chemicals boost कर देता है हमारी बॉडी में. So सबसे पहला है satisfaction of being right or doing the right thing. दूसरा है एक integrity वाला ऑफिसर will command respect, right? Person will have huge respect. Not just respect, that person will have huge credibility and dependability, right? Now when you will become civil servant, पहले कुछ महीनों में या पहले कुछ 1-2 सालों में ही people will try to judge you, और आपकी एक इमेज जो है वो सकता है पहले 1-2 साल में ही क्रिएट हो जाए that this person has this level of integrity, या ये व्यक्ति तो करप्ट है, चोर है, या ये इस व्यक्ति में इंटेग्रिटी है. तो शुरुआती सालों में ही आपकी जो है वो एक इमेज बन जाएगी, और अकॉर्डिंग टू दैट, उसी इमेज के अकॉर्डिंग जो है वो हायर ऑफिशियल्स, लोअर आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके सीनियर्स, मंत्रीगण आपके साथ डील करेंगे, राइट? तो आपने आमतौर पर सुना होगा कि जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, इंटेग्रिटी वाले जो ऑफिसर्स हैं, बहुत जल्दी से उनकी ट्रांसफर्स हो जाती है. सिस्टम जो है वो उनको साइड लाइन कर देता है, राइट? लेकिन एट द सेम टाइम दे कमांड ह्यूज रिस्पेक्ट, दे हैव क्रेडिबिलिटी एंड दे हैव डिपेंडेबिलिटी.
बिकॉज फॉर एवरी गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट के पास अपने डार्क हॉर्सेस तो होते ही हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, उनके पास ऐसे ऑफिसर्स होंगे जो उनके लिए सारे टेढ़े मेढ़े काम करेंगे, लेकिन दे ऑल्सो नीड, उनके लिए मस्ट हैं ऐसे ऑफिसर्स दोज हु हैव इंटेग्रिटी, दोज हु आर कॉम्पिटेंट, जिन पर वो डिपेंड हो सकें कि अगर कोई सिचुएशन आई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है, तो ये व्यक्ति भले ही पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो, या पास्ट में जो है वो इस व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा ना रहा हो पॉलिटिकल लीडरशिप का, लेकिन इस सिचुएशन में इस व्यक्ति से बेटर जो है वो इस सिचुएशन को कोई नहीं हैंडल कर सकता। सो ये क्रेडिबिलिटी आपकी जो है वो बनती है। एंड गवर्नमेंट को ही देखिए, गवर्नमेंट कोई भी सरकार हो, उनका मेन एजेंडा क्या होता है कि अगले 5 साल में आगे आने वाले इलेक्शन के लिए जीत की तैयारी भी करते रहना है, पैसा भी इकट्ठा करते रहना है, बट एट द सेम टाइम खासतौर पे 21st सेंचुरी में अब सरकारों को धीरे धीरे समझ में आना लगा है ये, खासतौर पे कि हमें काम भी दिखाना पड़ेगा, नॉट दिखाना, करना भी पड़ेगा, बिकॉज समटाइम्स मेनी टाइम्स इट इज रादर, और ज्यादा बेटर पब्लिसिटी होती है, काम भी अच्छा हो। तो ऐसे ऑफिसर्स जो कि काम करते हैं, एक्चुअली में इंटेग्रिटी रखते हैं, उनको साथ में लेकर चलना भी जो है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। सो इंटेग्रिटी रखने वाले ऑफिसर्स, दे कमांड ह्यूज रिस्पेक्ट, दे हैव क्रेडिबिलिटी एंड दे हैव डिपेंडेबिलिटी। मैनी टाइम्स सुप्रीम कोर्ट खुद अपॉइंट करता है सिविल सर्वेंट्स को कि यहां पर आप लगो, यू हैव दी, मतलब अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट लगाता है कि आपको हम अपॉइंट करते हैं, कोई नहीं हटा पाएगा आपको, राइट। तो दैट, उसके लिए थर्ड पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं, या सेकंड पॉइंट में इंक्लूड कर लें बेनिफिट्स में, दैट हाई चांसेस ऑफ क्रूशियल डेजिग्नेशंस एंड अपॉइंटमेंट्स। क्रूशियल डेजिग्नेशन, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर जो है वो बिठाया जाता है ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास इंटेग्रिटी होती है, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी होती है, इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार लड़ना ही, आप सरकारों से लड़ते ही रहेंगे। जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ऑफिसर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास क्रेडिबिलिटी नहीं होती, डिपेंडेबिलिटी नहीं होती, बट यस, जब आप सिस्टम में जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड द बैलेंस, द नीट बैलेंस बिटवीन being a problematic officer and being a credible, dependable officer, right? So third है the high chances of getting better positions, getting crucial designations due to credibility and dependability. Now if there are benefits of civil services, benefits of integrity in civil services, there are definitely some problems associated with integrity. Now if you are a civil servant with integrity, right, तो आपको आपकी फैमिली के साथ बहुत प्रॉब्लम होगी। सबसे पहला पॉइंट है प्रेशर, आप पर प्रेशर आएगा बहुत सारा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव अ लॉट ऑफ उम्मीदें फ्रॉम यू। फर्स्ट ऑफ ऑल योर फैमिली की बहुत उम्मीदें होंगी कि भैया अब तो ट्रेवल फ्री है, ट्रेन में, बसेस में, टोल पर हमसे कौन टोल लेगा, हमसे कौन किराया लेगा, भाई हम तो डीएम के रिश्तेदार हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट्स में हमसे कौन पैसा लेगा, हम तो डीएम के रिश्तेदार हैं। और अगर आप में इंटेग्रिटी है तो आप उनको ऐसा खुद भी नहीं ऐसा कुछ करेंगे और उनको भी नहीं करने देंगे। सो फैमिली से आपकी बहुत, फैमिली को आपसे बहुत उम्मीदें होंगी, उनकी एस्पिरेशंस होंगी, और अगर आप में इंटेग्रिटी है तो आप उन्हें बहुत डिसअपॉइंट करने जा रहे हैं, right? Not just that, there will be a lot of political pressure on you. Political leaders जो हैं वो अपना काम टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी काम बनवाने के लिए आपका यूज करने की कोशिश करेंगे, राइट? बिकॉज उनके लिए तो क्या है, आपको यहां से उठाया वहां डाल दिया, एक जगह से ट्रांसफर किया दूसरी जगह फेंका, राइट? सो प्रेशर क्या होगा, ट्रांसफर का प्रेशर होगा, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी का, आपके सीनियर्स का, अदर डिपार्टमेंट्स का, ब्यूरोक्रेसी का जबरदस्त आपके ऊपर प्रेशर होगा। लेकिन अगर आपके अंदर इंटेग्रिटी है, अगर आप नहीं रहेंगे, नहीं हिलेंगे, अटल रहेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा चीफ मिनिस्टर क्या कर सकता है, ट्रांसफर ही तो करेगा। और अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए सस्पेंड कर ही दिया तो
सस्पेंशन जब मिलता है सिविल सर्वेंट्स को तो पैसा सैलरी मिलती है, तो उससे बेटर तो होता ही नहीं है कुछ। सिविल सर्वेंट्स तो ढूंढ रहे होते हैं कि हमें सस्पेंशन मिले तो हम छुट्टियां बिता के आए, गांव जाएं, घर जाएं, क्योंकि इतनी बिजी, इतनी हेक्टिक जॉब है, पर्सनल लाइफ जो है वो मतलब बहुत बहुत उथल पुथल मच जाती है पर्सनल लाइफ में, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर की जा सकती है, कीजिए ट्रांसफर, तैयार है। कुछ लोगों को तो बहुत मजा आता है ट्रांसफर करवाने में। अच्छे आईएएस लोगों का जो सर्कल है, उनकी जो लॉबी है, उसमें ऐसे लोगों का एक सब सेक्शन, एक सब सर्कल है जिनकी ट्रांसफर्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो उन एक प्राइड की फीलिंग है कि मेरी इतनी ज्यादा ट्रांसफर होती है। क्यों? क्योंकि मैं इतना ईमानदार हूं, मैं इतना इफेक्टिव हूं कि बहुत जल्दी लोग जो है वो अलर्ट हो जाते हैं मुझसे। मेरे आते, मैं किसी जिले में जाऊं तो वहां का प्रशासन, वहां का दुशासन सब अलर्ट हो जाता है मेरे वहां जाने से। तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निक्स सिविल सर्वेंट्स जो है वो डेवलप कर लेते हैं ओवर द ईयर्स, कोपिंग मैकेनिज्म्स टू डील विद दैट प्रेशर, all from the family, from the political part, for political leaders and from bureaucracy, right? Then दूसरा क्या है, प्रेशर है, और क्या है प्रॉब्लम, डिमोशंस, आपकी प्रमोशंस को रोक लिया जाएगा या आपको डिमोट कर सकते हैं, राइट? आपकी ट्रांसफर की जा सकती है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है ग्रुप बी ऑफिसर्स को, राइट? आप पर केसेस किए जा सकते हैं, मीडिया का प्रेशर भी होगा आप लोगों के ऊपर। बट सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो दे डेवलप कोपिंग मैकेनिज्म्स, या मैं इस तरह पुट करूं कि बेनिफिट्स एक्सीड्स द प्रॉब्लम। बेनिफिट्स जो हैं वो ज्यादा हैं और प्रॉब्लम्स कम है, लेकिन ध्यान रखिएगा इंटेग्रिटी किसमें है? इंटेग्रिटी है जब आप ये कैलकुलेट करें ही ना, नो कैलकुलेशन, आपके दिमाग में कैलकुलेशन ही ना आए बेनिफिट और नुकसान की, आपके दिमाग में आए व्हाट इज द राइट थिंग टू डू हियर, ठीक है? आपके दिमाग में आपके सेट ऑफ वैल्यूज हों एंड यू, आपका कंडक्ट जो है वो सेट ऑफ वैल्यूज के साथ कंसिस्टेंट रहे, यू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। और बेनिफिट और नुकसान का कैलकुलेशन आपके दिमाग में जब ना हो, देन it is said that you have integrity. And integrity, what is? It is opposite to hypocrisy, right? Hypocrisy is when there is a stark difference between the values and conduct, or the attitude and the behavior. When there is a stark difference between values and conduct, it is hypocrisy. And when there is clear consistency between value and conduct, it's integrity. So integrity का opposite जो है वो आप मान सकते हैं hypocrisy को. Then next, let us understand the relationship between integrity and honesty, because ये group 1 में हम पढ़ रहे हैं. So integrity and honesty, what is the relationship? So what is the meaning of being a person of integrity? That there is almost 100% consistency between your values and your conduct, right? Or we can say that in the hierarchy of values, integrity falls above honesty, or integrity is higher level of honesty, right? Like for example, what is being honest? अगर honesty को मैं explain करूं, so being honest is to adhere to the given rules and regulations, चाहे वो पर्सनल लाइफ के हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के हो. So if you are adhering to the given rules and regulation, you are being honest, right?
बट इफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस के एम्बिट में रहते हुए भी अगर आप पर्सनल बेनिफिट्स कमाएं, पर्सनल बेनिफिट्स गेन करें, राइट, then no one can say that you are not being honest. You are being honest because you are under the ambit of the given rules and regulations, and still you are getting personal benefits, right? That is, वो कहा जा सकता है that you are being honest but you lack integrity. Integrity is when you know that you can gain personal benefits by following the rules and regulations only, yet you do not do it out of principles, out of your values, because you have the value of not taking advantage. There you have integrity. You have the value of responsibility, of transparency, of dependability, of accountability. So you refuse to take benefit even if it falls under the ambit of the given rules and regulations. Then you have integrity, right? And if you follow the rules and regulations, you are honest. And if you do not follow the rules and regulations and then you get benefit or you gain benefit, then it is said that you are dishonest, you are not honest, right? Like for example मैं आपको दूं क्रिकेट के पिच का, राइट? क्रिकेट पिच है, बॉलर आ रहा है दौड़ते हुए, बॉलर ने बॉल किया, बैट्समैन ने शॉट लगाया, बैट्समैन ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन बॉलर का ध्यान भी बॉल की तरफ और बैट्समैन का ध्यान भी बॉल की तरफ, दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे, राइट? और बैट्समैन जो बॉलर से टकरा गया और बैट्समैन गिर गया, ठीक है, और फील्डर ने थ्रो करके बॉल आपके हाथ में दी, एंड नाउ यू हैव अ क्लियर चांस कि आप स्टंप कर दें उस बैट्समैन को और आउट कर दें। इतना वो बैट्समैन उठेगा, क्रीज तक पहुंचेगा, आप उसे बैट्समैन को स्टंप कर देंगे, राइट? लेकिन अब आपके अंदर डिलेमा जागेगा, क्यों? क्योंकि अगर आपने स्टंप कर दिया तो बहुत क्रूशियल विकेट है, वो बैट्समैन सेट है और वो बहुत मंजा हुआ बैट्समैन है, वो जिता देगा मैच को। और अगर आप स्टंप कर देते हैं अभी बैट्समैन को, तो देयर इज अ गुड चांस दैट योर टीम वुड विन। लेकिन यहां पर स्पोर्ट्समैनशिप क्या कहती है, आपकी इंटेग्रिटी क्या कहती है, कि वो व्यक्ति, और इट इज क्लियर दैट कि आपने जानकर नहीं गिराया उस व्यक्ति को, गलती से वो व्यक्ति टकरा, आपका टकरान हो गया, जिसमें दोनों की ही गलती नहीं है, दोनों का ही ध्यान नहीं था, इनफैक्ट दोनों की ही गलती है, म्यूचुअल गलती है दोनों की, और जिससे वो व्यक्ति गिर गया नीचे। नाउ वुड यू टेक बेनिफिट ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन यू कुड स्टंप, आप स्टंप कर सकते हैं, उन्हें आउट कर सकते हैं, राइट? और वो विकेट आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर होगी, राइट? लेकिन आपकी स्पोर्ट्समैनशिप ये कहती है कि नहीं, ये व्यक्ति की झूठ फरेब मक्कार से जो है वो हमने ये विकेट नहीं लेनी है। सो वी आर नॉट प्लेइंग फॉर द सेक ऑफ, वी आर नॉट ओनली प्लेइंग फॉर द सेक ऑफ विनिंग, इट इज अ स्पोर्ट्स, वी आर प्लेइंग फॉर द सेक ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। सो वेयर इज द स्पोर्ट? स्पोर्ट कहां रह जाएगा इफ इट इज ओनली अ मैटर ऑफ डेटा? अगर डेटा, दैट इज वाई ना इन द प्रेजेंट टाइम अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स एंड अ लॉट ऑफ सच एक्टिविटीज जो है वो बहुत करप्ट हो गई है। करप्ट इन द सेंस, उनमें से वो सोल चला गया, बिकॉज डेटा आ गया बीच में, राइट? कैपिटलिज्म और प्रॉफिट और कंपनीज और उनका डेटा वगैरह, बहुत सारी चीजें, बहुत मेरे मन में बहुत करीब थी चीजें, उन्होंने करप्ट कर दिया उन्हें। खैर, लेट अस नॉट डिस्कस दिस। सो क्रिकेट पिच पर नाउ योर स्पोर्ट्समैनशिप इज सेइंग दैट कि स्टंप नहीं करना है, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत अगर आप स्टंप करके आउट कर देते हैं तो यू आर बीइंग ऑनेस्ट। अगर आप स्टंप नहीं करते हैं, यू आर बीइंग अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, राइट? सो फाइनली, व्हाट इज द रिलेशनशिप between integrity and honesty? So it is best
represented in the form of a stair. In the journey of your life, integrity, if here is honesty, here lies integrity. That means you cannot become a person of integrity without first being a person of honesty. Right? What I said, that integrity is the higher level of honesty. First you need to be a person of honesty, then only you can become a person of integrity. Right? So that is what is the relationship of integrity and honesty. That integrity is higher level of honesty, and in order to become a person of integrity, first you need to become a person of honesty. Person of honesty कहने का मतलब person possessing the value of honesty. So that is the relationship between honesty and integrity. Right? Next we will try to understand what is the relationship between integrity and probity, or what is probity and what is the relationship between integrity and probity. But that is we will cover in the next session. So in the next session group 1 हमारा complete हो जाएगा, then we will enter into group 2. But so that is all for today's session. So I hope आप लोगों को आज का सेशन समझ आया होगा. क्या पढ़ा हमने? फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज. राइट. सो हमने इन ग्रुप्स में जो है फाउंडेशनल वैल्यूज को बांटा है. सो ग्रुप 1 इज इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी. देन ग्रुप 2 इज ऑब्जेक्टिविटी, impartiality, non-partisanship, neutrality. Group 3 is empathy, tolerance, compassion towards weaker section, empathy, sympathy. Group 4 is perseverance, patience, persistence and fortitude. Group 5 is commitment, dedication to public service, spirit of service and courage of conviction. Group 6 is accountability, responsibility, transparency and trustworthiness. And group 7 is anonymity. So we will try to understand all these terms. आगे आने वाले 3, 4, 5 सेशंस में हम कवर करेंगे. तो चैप्टर 4, चैप्टर 3 दैट इज एप्टीट्यूड. ऑलराइट. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.